guest as the host in this chair, as I say, the guest in this chair, I can but share and observe in the disappointment all around us as the game went the wrong way for this nation. However, it's just time to say good evening, welcome to Game on Hay. We will be discussing the ups and downs, the whys and wherefores of this game of cricket for a little while yet this evening. Our panel is assembled as ever, looking calm. I'm not quite sure about the underlying emotions, but Sana, it was, whatever else you say, it was an extraordinary game of cricket. Absolutely, it was a great game of cricket. We were glued to our seats till the very end, but unfortunately Pakistan couldn't win it. But otherwise, a great game of cricket. As I say, we'll have a chance to look at all the ups and downs, all the whys and wherefores, discuss the moments that might have affected the game most. Give our congratulations, of course, to Australia, who will now meet New Zealand in the final in 3 days' time in Dubai at the same ground. Let's just have a look back then at the cards. Let's just see the match summary to confirm the result here. Pakistan lost the toss. Australia, to no one's surprise, put them into bat first. 176 for 4 was, I'd say, a pretty good score, to be honest. Slightly more than maybe it might have been expected. Certainly slightly above par. Mohammad Rizwan outstanding with his 67. Fakhar Zaman finding form at just the right time. 55 not out from 32. Babar Azam started so very well, 39 from 34, but Stark Zampa accompanies. Zampa was outstanding actually, 1 for 22 from his 4 overs, pegged everything back in the middle. So the reply from Australia, well, there were early setbacks, but David Warner has been in good form on and off in this tournament, 49 from 30. Matthew Wade and Marcus Stoinis at the end, the unbroken partnership of 81 saw Australia home. Despite the efforts of, for instance, Shadab Khan, 4 for 26 from his 4, but others at crucial times were just that little bit more expensive. But this game is all about the entertainment as much as anything else. Yes, there is national pride. Yes, there is the will to win. Yes, we all support a team. And I have to say, in the studio, we were all backing Pakistan at the start of the day. The minutes of that meeting will confirm that. Sana, where should we start? Where should we start with this post-mortem? I think we can start with the batting cards initially. If we can just have the look, Pakistan batting card, if we can just have a look. Mohammad Rizwan ऊपर से देखें 67 रन्स बनाए, स्टार्ट मिला, बाबर आजम अगेन स्टार्ट हुआ 39 रन्स, प्लेटफॉर्म सेट था. फ़खर ज़मान बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में वापस आए, अच्छी स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, 55 रन्स बनाए, नॉट आउट. बाकी किसी की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं. एक अच्छा टोटल ऑन बोर्ड था. हो सकता है 5-10 रन्स का हम कह सकें मार्जिन, बट ओवरऑल अच्छा था. यहाँ पे अगर हम बॉलिंग कार्ड्स की बात करें, स्टार्क 2 विकेट्स ले सके. जॉश हेजलवुड जो इस टूर्नामेंट के सबसे अच्छे ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलर साबित हुए, उनको बहुत अच्छा अटैक किया पाकिस्तान ने. 49 रन्स लिए उनके 4 ओवर्स से. उसके बाद मैक्सवेल ने भी 3 ओवर्स में सिर्फ 20 रन दिए, अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने. कमिंग्स थे, एक विकेट कमिंग्स और जैम्पा को मिली. जैम्पा ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई आई थिंक ऑन द पिच. एंड इफ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू द बैटिंग card of Australia? We can do, just to confirm the grisly details. Warner started well, 49 from his 30. Finch, of course, gone in that first over to the 3rd ball of the innings. Another Shaheen Shah Afridi classic coming in to trap him LBW. Recovery with Mitch Marsh. A disappointment for Smith and for Maxwell as well. Maxwell, I don't think he's made double figures in this tournament yet, but he'll have yet another chance in the final. But the crucial partnership there, Stoinis and Wade, Marcus Stoinis, Matthew Wade, 40 and 41 respectively. They gave themselves every chance. They backed themselves. They had an over to spare at the end. And that was the partnership that sunk the dreams of an entire nation here in Pakistan. In terms of the bowling figures, well, a real mix here. Shadab Khan, 4 overs, 11 dot balls, 4 for 26, kept picking up wickets at the right time in the middle and kept Pakistan's hopes very much alive. Afridi, Shaheen Shah Afridi, brilliant at the start, but Matthew Wade found ways of hitting for 6 at the end. Imad, just 3 overs, none for 25. Haris Rauf, a little bit expensive. Hassan Ali, well, he's had one of those tournaments, hasn't he, where he's had magic moments and he's had quite the opposite as well. None for 44 from his 4. So the most expensive on the day of those that bowled more than 1 over. And I'm afraid at the end of it all, Australia had the firepower at the end. And for a moment or two, that ground just didn't seem to be big enough. Yes, and I think what I would like to start with, the
with our panel on the left is the fielding. बहुत की रोल प्ले किया, बहुत से कुछ रन आउट्स मिस हुए, कैचेस मिस हुए, और हम बात कर रहे थे नर्व्स की, प्रेशर हैंडलिंग की. आपको लगता है कि वहीं पे मेन डिफरेंस आया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का? नहीं, पहले तो ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने बहुत सी क्रिकेट खेली है, आउटस्टैंडिंग जो आखिर के रन बनाए हैं. अपनी गलतियां बाद में देखते हैं, लेकिन उनको हमें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है. और पाकिस्तान ने भी थ्रू आउट द इवेंट बहुत ही कमाल क्रिकेट खेली है. T20 में होता है, आपने पिछले मैच में इंग्लैंड का भी देखा, 1 ओवर रह गया, आज भी 1 ओवर रह गया, तो ये क्रिकेट के पार्ट है. और अपने शायकीन क्रिकेट से बोलना चाहूँगा कि कुछ प्लेयर परफॉर्म करते हैं, हीरो बन जाते हैं ओवरनाइट, और कुछ प्लेयर नहीं कर पाते, तो उनको बैशिंग मत कीजिएगा सोशल मीडिया पे. हसन अली ने की परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसका ये मतलब नहीं है पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है. बहुत अच्छा प्लेयर है, पास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है उसने, तो इसका मतलब नहीं है कि आप राइट ऑफ कर दो उसको. ऐसे क्रिकेट में पार्ट होते रहते हैं. फील्डिंग बिल्कुल डेफिनेटली, और उसमें क्या है, जो प्लेयर अंडर प्रेशर होता है, परफॉर्म नहीं होता, और उसके पास बॉल आए तो वो होता है ऐसा, क्योंकि मेंटल तौर पे इतना प्रेजेंट नहीं होता. वो ज़रूरी है कि वहाँ पे होना चाहिए. कैच छूटे, फील्डिंग रन आउट छूटे, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का डे था, बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, स्पेशली स्टॉइनस, जो कि इस इवेंट से पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैच को फिनिश करना मैं चाहता हूँ, फिनिशर बनना चाहता हूँ. मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में टॉप ऑर्डर ओपन बैटिंग करते हैं, वो अपनी स्टेट से T20 बिग बैश में यहाँ पे 7 नंबर पे 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया ऑस्ट्रेलियन ने. अभी की बात नहीं, 87 वर्ल्ड कप देखें, 96 में हारे ये, 99 का वर्ल्ड कप, 2003 2007 का वर्ल्ड कप देखें, डोमिनेट टीम है. और ये नॉकआउट में मेरे ख्याल से जो टीम सबसे बेहतर है वो ऑस्ट्रेलिया है. बिल्कुल, नॉकआउट्स में पाकिस्तान के साथ 4 मैच इससे पहले खेल चुके थे, चारों इन्होंने जीते, आज ये 5वां मैच जीत गए. नॉकआउट्स में बहुत बेहतर है. उमर भाई, अगर हम बात करें इसमें से पॉजिटिव की, जैसे राशिद भाई ने भी कहा, तो सिर्फ एक पॉजिटिव अब नज़र ये आता है कि T20 वर्ल्ड कप का एक नया चैम्पियन होगा. न्यूजीलैंड की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम, दोनों कभी वर्ल्ड चैम्पियंस नहीं बन सके इस फॉर्मेट में, जबकि दोनों बड़ी एग्रेसिव टीम्स हैं. तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस है, वेल डिज़र्व करते हैं, सही टाइम पे मोमेंटम में आए? पहले तो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, और जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, हमने बड़ा एंजॉय किया जिस तरह लड़कों ने परफॉर्म किया. आई थिंक वन बैड डे, बुरा दिन था आज. बस थोड़े से हम अपने प्लान जो हमारे थे वो राइट टाइम पे हमने एग्जीक्यूट नहीं किए. ऑल दो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और बिल्कुल नया चैम्पियन बनने जा रहे हो. और आई थिंक ओवरऑल क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं भूल गया आपका. मैं कह रही हूँ कि ओवरऑल जो नॉकआउट्स में ये दोनों, एक तो टीम्स पहली दफ़ा वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगी, ऑस्ट्रेलिया ने एंड पे मोमेंटम लिया, काफ़ी डिजर्व करते हैं इस जगह पे आना, कम बैक किया उन्होंने काफ़ी. मेरे ख्याल से क्रेडिट जाते हैं तो जिस तरह वार्नर ने स्टार्ट लिया, क्योंकि 178 आई थिंक अच्छा, बोर्ड पे अच्छा स्कोर था, और प्रेशर गेम था, सेमीफाइनल था, नॉकआउट. और जिस तरह उसने एक टोन सेट किया अर्ली ऑन, और फिर जिस तरह मार्च ने आया और उस मोमेंटम को तोड़ने नहीं दिया. ऑल दो बीच में हमारे कुछ अच्छे ओवर भी हुए, हमने कुछ अच्छे आउट भी किए, जो उनके कुछ प्लेयर थे स्मिथ से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा प्लेयर है, मैक्सवेल ने रन नहीं किया. लेकिन जिस तरह सेट उसने टोन सेट किया था वार्नर ने, और उसी मोमेंटम को स्टोनिस ने बड़ा ज़बरदस्त कंटिन्यू किया. और फिर जिस तरह फिनिश किया मैथ्यू वेड ने नीचे से, बड़ा ज़बरदस्त 17 बॉल पे 41 रन्स. एक आपके एक पीक के बॉलर को, जो वर्ल्ड का टॉप का बॉलर है, उसको जिस तरह से लास्ट ओवर में मारे, आई थिंक टोटली क्रेडिट गोज टू मैथ्यू वेड. बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, और हार्ड लक पाकिस्तान. बिल्कुल हार्ड लक पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़बरदस्त मैच. अजहर भाई, इनफ रन ऑन द बोर्ड आपके लिए, आप समझते हैं? नहीं, आई थिंक इनफ रन ऑन द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया को मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली. आई थिंक हम लोगों ने भी, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. एग्जैक्टली सेम सिनारियो जैसे कल मैंने बात की थी कि वही था कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था थ्रू आउट, जो है ना. अगर आप देखें, ऊपर से डेविड वार्नर की इनिंग्स खेली, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मैच में थे. और आपको पता है कि T20 फॉर्मेट में जो एक पार्टनरशिप वो गेम चेंज कर सकती है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है. ये वनडे क्रिकेट नहीं है, टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं है, जहाँ पे टाइम ज़्यादा है. तो आपको, जैसे आकिब भाई ने कल भी बात की थी, कि जब आपके पास 3 ओवर रह जाते हैं और उसमें 40 रन करना, 45 रन करना आसान होता है. अगर 10 ओवर में ये स्कोर करना हो, 12-13 की एवरेज करनी हो, तो फिर ज़रा मुश्किल होता है.
तो ये फिनिशर थे, उन्होंने बहुत आला खेला, ठीक है। उसमें हमारी थोड़ी सी गलतियां हुई हमसे, ड्यूरिंग द फील्डिंग हमने जो है ना वो 3 रन आउट मिस किए। उसके बाद जो है आई थिंक जो ओवर था उस वक्त आपको थोड़ा सा, यंग कप्तान है हमारे बाबर जो है ना, वो जाहिर सी बात है वो सीखेंगे, वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छे कप्तान नजर आए, उनके डिसीजन बहुत अच्छे नजर आए। लेकिन हमारा जो पहला मैच था इंडिया के साथ वो हमारा प्रेशर वाला मैच था, उसके बाद प्रेशर उठ गया था, ये प्रेशर वाला मैच है, इससे पता चलेगा कि वो किस तरह रिस्पांस करते हैं इसके बाद से, ठीक है। कि 3 ओवर जिस वक्त रह गए थे जब था, तो वो उस वक्त आई थिंक कि शहीन का ओवर मेरे ख्याल में कि वो होता कि आपका बेस्ट बॉलर उस वक्त करता, रन रेट ऊपर जाता तो डिफरेंट बॉल गेम हो जाती। तो वो ये चीज़ें गेम में होती हैं। इफ़ एंड बट्स की हम बात करें तो वो ये होता है, पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मैंने अभी देखा कि हसन अली को बैशिंग शुरू हो गई है। हसन अली वाज अ हीरो एंड इंशाल्लाह विल स्टिल बी अ हीरो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बिल्कुल फॉर मैनी ईयर्स टू कम। लेकिन मसला ये है कि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह नहीं था, विकेटें उनको नहीं मिली। तो हमने आज देखा हसन अली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान लाइनअप, उनसे कैच ड्रॉप हुआ। दैट शोज के अंडर प्रेशर, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, आपका माइंड जो है ना वो काम सही तरह नहीं करता, तो फिर आपसे मिस्टेक होती हैं। और की मोमेंट में आप जब, ये गेम है की मोमेंट्स विन करने का, वी लॉस्ट द की मोमेंट। Yesterday, England lost a key moment. That's why they were out of the tournament. And well done to New Zealand and well done to Australia for reaching into the final. और हमें जो है ना नया T20 वर्ल्ड कप का विनर मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेजेस इधर से आए हैं। मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए हम टीम की मैच्योरिटी के लिए बात करते हैं, पर एज फैंस, एज एनालिस्ट, हम लोगों को भी मैच्योरिटी दिखानी है। और अगर इस वक्त कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो ठीक है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बैशिंग नहीं कर सकती, क्योंकि जितने लोगों की हमने बैशिंग की उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत से लोगों ने प्रूव किया उस चीज़ को रॉन्ग। तो इंशाल्लाह हसन अली भी करेंगे। So the first thing, I agree. Yes, I entirely agree. Okay. Because it's happened. That's why people say do thing at one time. When you're bowling, don't think about your fielding, and when you're fielding, forget what happened when you're bowling. So he was still there. He was disappointed, especially after bowling a no ball, and it's happened. And sometimes if you're not feeling well, I could see from his face when he was bowling after the no ball, he wasn't right. At that time, somebody should go to him and ask him, how do you feel? Do you feel confident? If not, field somewhere else. Because in this game, it's a complete repeat of yesterday's game. England was winning 35 overs and lost in last 5. And today, after scoring 176, Pakistan never looked in trouble when they were batting, and they were in control in first 6 overs, getting 2 wickets. Well controlled within the phase from 7 to 15, because Shadab bowled really well. And then it's come to about 62 in 5. Then where you need your bowlers to choose the right movements, right ball at the right spot. And it took us 24 hours. What felt to you last night? What we have felt. let's not forget that. Let's not bring this back to England quite so soon. Hassan Ali have personally been a star in the past. Yeah. I've seen him, and those of us who have watched him over the years, he puts his body on the line most times. So Ben Stokes. Remember the name, okay? He went for 4 sixes, okay? And after that, you learn from your mistake. After that, Ben Stokes become a #1 player in the world in all-rounder, okay? Same thing happened to Stuart Broad. Okay? Sorry, I'm putting England players. Yeah. But see, where is Broad right now, one of the best bowler in red ball cricket. So these things happen to players. मैं सिर्फ अपने लोगों को सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जल्दी होता है कि कोई इस तरह की परफॉर्मेंस होती है और हम अपने लोगों को नीचे गिरा देते हैं। हमें अपने लोगों को नीचे नहीं गिराना। हसन अली, ये टीम जो है ना, इस टूर्नामेंट में हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरह के हमारे सर्कमस्टांसेस थे, जिस तरह की हमारी चीज़ें हुई, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे।
टीम ने पूरे पाकिस्तान को एक साथ इकट्ठा कर दिया। ये पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, हमें इन्हें बैक करना है। बहुत जबरदस्त बात। ये वही हसन अली है जिसने दो तीन साल पहले जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी हमें जिताई है। तो जिस तरह अली मैंने कहा बैड डे था पाकिस्तान टीम का, हसन अली का बैड डे था, ऐसी कोई बात नहीं है। पास में उसकी जो परफॉर्मेंस है हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। आ जाता है प्लेयर्स पे, कोई जानबूझ के नहीं करता कि मैं कैच ड्रॉप करूँ या अच्छी बॉलिंग ना करूँ, क्योंकि इस एंड ऑफ द डे ग्रेट ऑनर होता है, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर वो आया भी है तो उसकी परफॉर्मेंसेज है, मेरे ख्याल से उसको हमें बैक करना चाहिए। मुश्किल टाइम पे हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए। You mentioned Ben Stokes and where he went. और पूरे थ्रू आउट द ईयर देखें इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, लेकिन इतनी परफॉर्मेंस के बाद अगर आप ना जीते, फाइनल में ना पहुंचे, कि अफसोस सबको है, लेकिन इनको कितना अफसोस हुआ होगा कि इतनी एफर्ट करने के बाद भी। लेकिन इनकी बैटिंग देख के, बाबर की, फ़खर की और तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के एक होप हो चलिए पूरे पाकिस्तान को कि फ्यूचर में आके ये प्लेयर्स बड़ा नाम करेंगे और अगले इवेंट भी आएंगे, अलग टेस्ट मैचेस भी आने वाले हैं पाकिस्तान के। तो इसको बस एक तरह से आपको झाड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा यानी वर्ल्ड कप को। लेकिन जितना भी खेला पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और इसके लिए सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सब की ज़रूरत है इसमें। हमने बात की कि इमाद वसीम को न्यू बॉल करनी चाहिए थी। ये वीडियो एनालिस्ट का, डाटा एनालिस्ट का काम था कि जब फिंच आउट हो गया है तो वार्नर सबसे अच्छा जो खेलता है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलता है। उसकी स्ट्राइक रेट कैरियर की 157 की है, तो इमाद को फौरन से हटा देना चाहिए था उस वक्त हफीज को ले, क्योंकि और उसका क्या है, फोर्थ स्टंप पे स्ट्रगल करता है वो, आप उसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। गेम एक्चुअली चौथे ओवर में 17 रन जो इमाद ने बनाया वहाँ से टर्न किया उसने। हम आखिर में नहीं जाएंगे कि शाहीन आफरीदी को कितने पड़ गए, ये 17 रन काउंट होंगे, फिर हफीज़ के 13 रन काउंट होंगे, 2 ओवर में 30 रन। ये डाटा एनालिस्ट का काम होता है। इनको स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा कि हमारी मिस्टेक अंदर मैदान में जो हो रही है कप्तान की नहीं है, हमारी मैनेजमेंट के साइड से भी मिस्टेक है। जो इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मैचअप के साथ जा रहा है, अब पूरी दुनिया उस ट्रेंड पे चल रही है। तो हमने ये मिस्टेक की है, लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस है यहाँ पे भी हमारा। हमें सीखना पड़ेगा कि हमें कब लेके आना है। शाहीन आफरीदी के 2 ओवर होंगे, मैं लेके आऊँगा 18 तो 20, 19 या 17 या 19। हम 14-15 में क्यों लेके आ रहे हैं उसको गलत लेके आए आप उस वहाँ पे, क्योंकि एक ओवर आप नहीं ज़ाया करें उसका। हसन अली कब करेगा उसको, अर्ली आउट आप कर लोगे। ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ग्राउंड की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है हमारी, अब ग्राउंड के बाहर आएंगे उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क जरूर हैं। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ही आसानी से खेला वार्नर ने, वो ओवर से पूरे मैच का पासा पलटा। और फिर हफीज़ जिस वक्त तक आए, ऑब्वियसली हफीज़ नए बॉल पे ज़रा ज़्यादा स्किडी होते हैं, थोड़ा सा लेट आए तो वो भी इफेक्टिव नहीं हो सके। पहला बॉल अनफॉर्चुनेटली हाथ में फंस गया जो भी था, और वो भी हमारे लिए इफेक्टिव नहीं हो सके। तो ओवरऑल फिर बाद में बॉलर्स को यूटिलाइज भी उस तरह से बाबर आजम नहीं कर सके सही से। देखें, वो राशिद भाई ने बात की, हम लोग मैच बैठे हुए मैच देख रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि चौथा ओवर जो है जो इमाद ने किया है उस टाइम पे वो बनता नहीं था। इमाद बीच में आते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता था। जाहिर सी बात है कि हम लोग इतना मैचअप्स पे नहीं जाते, पाकिस्तान टीम जो है ना, हम इतना मैचअप्स पे नहीं जाते कि किस तरह क्या होना चाहिए, इतनी डिटेल्स में नहीं जाते। वहाँ से यही होता है कि जैसे हम लोगों ने सिग्नल रखा हुआ है तो आपको कप्तान को एक सिग्नल दे देना चाहिए कि क्या चीज़ कर सकते हैं। बाकी एंड में तो डेफिनेटली हम जब बात करते हैं कि कप्तान को एम्पावर करना है, उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वो भी यंग कप्तान है, अंडर प्रेशर में इतने मैचेस नहीं खेला हुआ। ये उसके लिए आई थिंक कि उसका एज ए कैप्टन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, इंडिया वाला और ये वाला मैच। तो इसमें मिस्टेक्स होती हैं। हफीज़ जिस वक्त बॉल करने आए, वो जो 2 टिप्पों वाला बॉल हो गया, उस पर 6 लग गया, लेकिन वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया। हाँ जी, मोमेंटम शिफ्ट होता है, छोटी गेम है तो उसमें आपका गेम जो है ना वो आपके हाथ से निकल सकता है। कुछ गलतियां होती शुरू में, लेकिन आखिरी प्लेयर नजर आया था कि मिस्टेक किससे होगी। आखिरी गलती आखिर की नहीं होती, 2 ओवर की। हम बीच में 2 गलतियां ऐसी करते हैं जिससे पूरा मैच शिफ्ट होता जाता है। बिल्कुल, तो और बिल्कुल, और हम जीतते भी साथ हैं, हारते भी साथ हैं, तो किसी एक भी प्लेयर के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। अब हम साथ बाबर आजम की तरफ भी जाते हैं। इस टाइप के बॉलर जो सीमर हो, अच्छी बॉल करते हैं, उनको पहले ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या किया इन्होंने, जैम्पा को पहले 13 ओवर शायद किया उन्होंने, और अपने जो 5th और 6th बॉलर को तो उनको भी ख़त्म कर लिया था।
तो इसलिए उनको कराना पड़ा क्योंकि 4 बॉलर से खेल रहे थे। अगर 5वां इनके पास होता, पैटिंसन टाइप का बॉलर होता या जे रिचर्डसन होता तो पर वो जो उन्होंने बैटिंग खिला दी उसी से पूरा कर दिया उन्होंने। एक चीज़ उमर भाई बिफोर हम ब्रेक के ऊपर जाएं, देखा कल इंग्लैंड को भी नहीं एग्जैक्टली पता चला, उनके पास भी विकेट्स इन हैंड थी, आज पाकिस्तान के पास भी विकेट्स इन हैंड, 4 विकेटों पे 176 किया है। तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा टीम को, टूर्नामेंट अब आखिरी मैच पे पहुंच गया है। और आके भाई ने शुरू में बात की थी कि ये वो वाला टूर्नामेंट है कि पिच पे रन्स होंगे और फिर वो बार बार चेज हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट टोटल क्या है। ये मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। बिल्कुल, वो जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इनिंग में आपको टारगेट सेट नहीं कर सकते। लाइक आप एक जो बहुत कम ऐसा होता है, रेयर होता है कि आप जाते हो ना, आप पिच के हिसाब से आप जाते हो, टारगेट सेट करते हो। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट पावर प्ले में फर्स्ट 6 ओवर में हमें कितने करने चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस उतने ही हुआ। 45 हम कह रहे थे, 40 to 45, 47 हमने किए, विकेट लूज नहीं किया हमने। और जिस तरह फिर हम इन बिटवीन जो ओवर्स की बात कर रहे थे, आई थिंक ओवरऑल हमारा अच्छा टारगेट लगा दिया था हमने बोर्ड पे 176। लेकिन जो सेकंड बैटिंग ऑस्ट्रेलियन को पता था कि क्या टारगेट है, उसके किस रन रेट से हमने जाना है, तो उसी को बरकरार रखते हुए वार्नर ने जिस तरह स्टार्ट किया और जिस तरह मैंने अर्ली कहा कि मोमेंटम को बाकी बैट्समैनों ने उसी तरह रखा, तो उनको पता था कि हमारे पास एक टारगेट है और जो रन रेट रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने दिया। ऑल्दो उनके बैक टू बैक विकेट भी गिर गए, लेकिन उनको अपने टारगेट का पता था। बिल्कुल। एंड वी हैव रीच्ड के बारे में बात की, इमाद वसीम का वो ओवर, उसके ऊपर भी आपने बात की। एक चीज़ और देखिएगा, शादाब को इसने लॉन्ग ऑन पे छक्का मारा है और हम देखेंगे मिच मार्श को वो गया मिड विकेट पे मारना है, वहाँ पे आउट हुआ। इससे पहले एक मैच में देखिएगा आदिल को मारा था गप्टिल ने, वो भी क्रॉस मारा, वो भी आउट हुआ। फिर आपने स्मिथ को देखा, उसने भी क्रॉस मारा। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सामने खेल रहा है लेग स्पिनर को, वो सर्वाइव कर रहा है। जिसने यहाँ पे क्रॉस किया और स्विच किया इसने मैक्सवेल ने, वो भी आउट। 3 तो इनके ऐसे ही आउट हुए जो गलत शॉट खेल के। लगता ऐसे ही था कि अगर ये अब लगता है ऐसा कि ये अगर गलत शॉट नहीं मारते, ये 3 ओवर पहले मैच खत्म कर देते, ऐसा लग रहा है। अगर वार्नर को वो पता नहीं क्या आवाज आई और वो चला गया। यार बताऊं क्या, कभी कभार नहीं साउंड आती कभी कभार, लेकिन जो बॉलर का और विकेट कीपर का रिएक्शन था और वार्नर का, उससे लग रहा है आउट था। ख्वाजा के साथ 2 दफा हुआ है कि उसके बैट पे नहीं लगी बॉल, लेकिन उस पर नजर आ गया। तो maybe something wrong with the software. अगर आप वो पिछले मैच में देखें, कोई मोहम्मद रिजवान की फोरआर्म पे बॉल लगा था, लगी है तो नहीं, स्नेक को नहीं आया। there was no snake को। कभी कभार, लेकिन वार्नर ने बहुत कमाल बैटिंग की है। और जैसे चौथा ओवर किया इमाद का, उसको 17 रन किए। इमाद ने 2 ओवर में 8 रन दिए हुए थे, लेकिन उसमें जो दूसरा ओवर है उसमें उन्होंने काफ़ी रन दिए। बीच में उनको लेके आना चाहिए, जैसे अजहर ने भी बात की है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे बहुत ही कंफर्टेबल है। जब फिंच आउट हो गए तो फिर शायद एक आध हफीज़ को दायरे में लेके आ सकते थे, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन होता है, इसी तरह से सीखते हैं। बाबर यंग कैप्टन है और इतनी यंग कम उम्री में उसने इंडिया के खिलाफ मैच खेला, जीता, न्यूजीलैंड, और इसके बाद सेमीफाइनल खेला। तो इससे लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है हमेशा। बिल्कुल। और सबसे इम्प्रेसिव बात यही थी कि एरन फिंच बहुत जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद ये इनिंग्स ने सेटअप किया प्लेटफॉर्म। सो आफ्टर थर्ड मैन पीछे ले जाए, मिड ऑफ के ऊपर ले आए, तो फॉर 2 सेकंड बैट्समैन सोचेगा कि हाँ यार ये मुझे वाइड यॉर्कर भी कर सकता है, अंदर वाला भी कर सकता है। बेशक उसमें आप अगर अंदर वाले भी करते हो तो एटलीस्ट बैट्समैन के दिमाग में वो डाउट होगा कि हाँ यार ये दो डिफरेंट टाइप के फिल्टर में मुझे इसने रखे हुए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, वाइड यॉर्कर भी कर सकते हैं और अंदर वाला भी कर सकता है। लेकिन जब आप इतना प्रेडिक्टेबल हो जाते हो तो बैट्समैन के लिए भी ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है, सॉरी, कि जब इफ़ यू आर 150, सो why can't you have a fine leg there and you can bowl Yorkers, white line Yorkers, block hole, bouncers and slow one at the same time. Nowadays if you're predictably bowling in the block holes, then the batsmen are skillful enough to take you on. And that's what they did against Rizwan, because Rizwan plays that shot too often, so they kept a fine leg, deep fine leg for him for a long period of time. Good observation. It's really important, as a bowler you need to understand your strength and the batsman's strength as well. Like Matthew Wade,
You know, his go-to shot is there. You know, he's a clean striker, co-corner, wrist. You know, he pedals. So you need to hide the ball wide. You know, like wide line. You go wide line, and you need to set the field to bowl different balls. You know, you can't set the field. You know, you can't have the fine leg up. If you want to have fine leg up, you can bring the square leg up and have a fine leg back. You know, for this shot, to block this shot and square leg up, and then you can have third man back and bowl the wide ball as well. मिड ऑफ के ऊपर बुलाना होगा फिर आपको, इसलिए कि वो आप उसके माइंड में कुछ होना चाहिए ना कि वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है. समटाइम आपको ना 145 प्लस आप बॉल कर रहे हो तो आपको अपने बॉल पे इतना कॉन्फिडेंस और कमांड होना चाहिए कि आप अपने बॉल को यूज़ करें. मेरे ख्याल से अगर आप इन फ्यूचर भी इस तरह होगा तो ऑब्वियसली ऐसे रिजल्ट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से स्टिल यंग, वो आगे जाके इंशाल्लाह सीख सकते हैं. लेकिन मैं थोड़ी उर्दू में बात करता हूँ कि इसको हमें कैसे करना चाहिए कि आप फील्ड जो सेट करें तो उसके पास एज अ बॉलर आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कि आप उसमें डिफरेंट बॉल कर सकते हैं. तो उसमें बैट्समैन जो है ना वो आपको इस तरह लाइन अप करके शॉट्स नहीं खेल सकता. अगर बैट्समैन को पता ये तो उनका गो टू शॉट है, क्योंकि ये लोग जितने भी हैं ना ऑस्ट्रेलियन देख लें, साउथ अफ्रीकन देख लें, ये लोग हॉकी भी बहुत ज़्यादा खेलते हैं. तो इनके लिए बॉल के नीचे जाना कोई मसला नहीं है. हमारे सब कॉन्टिनेंट लोगों के लिए थोड़ा मसला होता है कि हम बॉल के नीचे नहीं जाते. ये लोग बड़े आसानी से अगर ये आपको सामने छक्का मार दें तो फेयर ना गुड शॉट, लेकिन ये वाला जो है ना वो चीकी रन्स के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड और ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए. बिल्कुल, यही कुछ चीज़ें थी जो छूट गई पाकिस्तान की प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन से, और आज सेमीफाइनल नहीं जीत सके. कुछ और भी मिस चांसेस हैं पाकिस्तान के, उनको भी देखते हैं और उनके ऊपर